संगत जी इजाजत दे नाल जी अज दी असी क्लास शुरू करते हैं जी। ते गुरु नानक दी इस फुलवाड़ी विच सारी साध संगत नू जी आया नू जी। गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ते हमेशा की तरह जी असी अपनी क्लास शुरू करन तो पहला एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्लास किस बारे है। ते साडी ये थर्ड सीक्वल क्लास चल रही है जी, जिहदे च असी पहला दो क्लासां नंबरिंग स्ट्रक्चर समझे, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच यूज हो रहे नंबर्स दी वरतों किवें हो रही है वो थोड़ी समझी। ते अज दी क्लास भी लगदी बिल्कुल ओहदे नाल है। थोड़ा जिहा जिहड़ा टॉपिक चेंज होया है वो है देहरी दीपक शब्द की है। ਅਤੇ ਐ ਤੇ ਐ मे बी I'm spelling it wrong। ਐ ਤੇ ਐ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਊ ਵੀ ਮੇ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਇਟ। ਤੇ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਲੀ ਫਰੋਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਇਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਮਿਨਟ, very interesting things to learn। ਤੇ over to you and let's start the class जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। let's start। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਹੁਰੀ ਦੀਪਕ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਹੁਰੀ ਦੀਪਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਹੁਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, that is called ਦੇਹੁਰੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੇਹੁਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਢੇ ਤ੍ਰੈਮਣ ਦੇਹੁਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹੁਰੀ ਦਾ ਦੀਪਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਫਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੇਹੁਰੀ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਲਾਲਟੈਨ ਜਾਂ ਦੀਪਕ ਜਾਂ ਦੀਵਾ ਉਸ ਦੇਹੁਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾ ਡਿਊਅਲ ਪਰਪਸ ਸਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਹੁਰੀ ਦੀਪਕ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਦੇਹੁਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਡਿਊਅਲ ਪਰਪਸ ਸਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੇਹੁਰੀ ਦੀਪਕ। ਹੁਣ ਦੇਹੁਰੀ ਦੀਪਕ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਡਿਊਅਲ ਪਰਪਸ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਦੇਹੁਰੀ ਦੀਪਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹੁਰੀ ਦੀਪਕ ਵਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਹੁਰੀ ਦੀਪਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਧ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇਹੁਰੀ ਦੀਪਕ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਕ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੇ ਸਹਿਜ ਰਹੈ ਉਡੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੇ ਸਹਿਜ ਰਹੈ ਉਡੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਮੀਨਿੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੇ ਸਹਿਜ ਰਹੈ ਉਹ ਉਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਡੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਵੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਵਾਗੁਣ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
सो जे असी इनू पढ़िए हर रस पीवे सहज रहे उड़े ना आवे जाए, वो भी गलत हो गया। जेड़ा उड़ेगा नहीं वो आवे जाएगा, गल बनी नहीं ना। सो हर रस पीवे सहज रहे उड़े ना आवे जाए, उड़े ना आवे जाए नू सानू कट्ठा ही पढ़ना पेगा, क्योंकि नन्ना देहुरी दीपक है और नन्ना दोनों पासे लगता है। ये नन्ना देहुरी दीपक है, ये नन्ना उड़े ना और ना आवे जाए। जेड़ा बंदा हर रस पीवे वो सहज रहे, उदी अवस्था सहज हो गई। हुण उन्हें कित्थे उड़ना है, उदा मन धावत नहीं एनीमोर, यू सी। और जेड़ा उड़ेगा नहीं, जेड़ा सहज विच आ गया वो आवे जाएगा नहीं, उदा आवागुण खत्म हो जाएगा। सो नन्ना इज एप्लीकेबल टू बोथ उड़े न आवे जाए। सो इट इज ए देहुरी दीपक शब्द। अगली तुक वेखिए, उन ते राखै बाप न माई, उन ते राखै मीत न भाई। सो मैं असी गल कर रहे सी कि हर रस पीवे सहज रहे उड़े न आवे जाए। हुण जे तुसी देखो ये नन्ना जिहड़ा हैगा ये दोनों पासे लगता है, इस वास्ते इहनूं देहुरी दीपक कहते हैं। जे असी इस तुक नूं दोबारा पढ़िए, हर रस पीवे सहज रहे उड़े न आवे जाए, जे एवें पढ़िया, जे उड़े ते अर्ध विश्राम लाता ते मीनिंग बनने नहीं, क्योंकि जेड़े बंदे की अवस्था सहज हो गई है उदा मन उड़ेगा नहीं, उदा मन सहज विच रहेगा। जिन्हों सहज अवस्था प्राप्त हो गई वो ना उड़ेगा ना आवे जाएगा। सो नन्ना इज ए देहुरी दीपक जिहड़ा दोनों नूं लगेगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड देहुरी दीपक, क्योंकि यह प्रकाश दोनों तरफ दिंदा है। उन ते राखै बाप न माई, उन ते राखै मीत न भाई। हुण इत्थे जे असीं विश्राम लाइए अर्ध विश्राम, उन ते राखै बाप न माई, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨਾਂ तो बाप रखेगा पर मां नहीं रखेगी। मीत ना भाई, वो भी गल नहीं बनी। सो इत्थे सानू तुक जिवें पढ़नी पेगी वो है उन ते राखै बाप न माई, कट्ठा पढ़ना पेगा बाप न माई नूं। उन ते राखै मीत न भाई, अर्ध विश्राम जिहड़ा आएगा वो राखै ते आएगा, मीत न भाई कट्ठा पढ़िया जाएगा। हर की नार सो सर्व सुहागण, इत्थे अर्ध विश्राम आएगा। रांड न मैले वेसे, जे ये तुक नूं असीं पढ़िए हर की नार सो सर्व सुहागण, रांड ना मैले वेसे, गल बने नहीं, क्योंकि जो सुहागण है वो रांड हो नहीं सकती, जो सुहागण है वह वेस मैला नहीं। सो रांड न मैले वेसे, नन्ना वो ना रांड है ना उसका वेस मैला है। सो नन्ना इज ए देहुरी दीपक शब्द जिहड़ा दोनों पासे लगेगा। इनू कट्ठा पढ़ांगे तां तुक दा मीनिंग सही रहेगा, जे इन्हां नूं अलग अलग कर देंगे तुक दा मीनिंग बदल जाएगा। उस सील न संजम, सील नूं औंकड़ है पर पढ़िया जाएगा सील न संजम, संजम नूं भी औंकड़ है। सदा झूठ बोलै मनमुख कर्म खुआर, वो जे उन्होंने असीं पढ़िए उस सील न संजम, गल बनी नहीं कि उन्होंने ना तो सील है ना संजम है। क्यों? क्यों सदा झूठ बोला, मनमुख है, मनमुख नूं ना सील है ना संजम है। सदा झूठ बोला, मनमुख कर्म खुआर, खुआर कर रहा कर्म अपने, सारी कर्मां दी खुआरी चल रही है उहदी। मत बुद्ध सुरत नहीं चतुराई, हुण जे पढ़िए मत बुद्ध सुरत नहीं चतुराई, गल बने नहीं। नहीं इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ दीज,
मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, कुछ भी नहीं हैगा। उन्होंने ना मत है, ना बुद्ध है, ना सुरत है, ना चतुराई है। सो नाही इज एप्लीकेबल to multiple words here. It is more than dual purpose, more than Dehuri Deepak. हृदय राम नहीं पूरन रहत, हृदय राम नहीं पूरन रहत। हुण जे असीं कहिए हृदय राम नहीं पूरन रहत, गल बनी नहीं। जिहड़े हृदय च राम है ओदी रहत पूरन ही है, ना ही पूरन रहत अलग नहीं होएगा। हृदय राम नहीं पूरन रहत, इस तरह ही पढ़िया जाएगा ये, ताकि कंटिन्यूएशन रहे, इनू वख नहीं कर सकते असीं। मारू महला पहला, काम क्रोध पर हर पर निंदा। काम क्रोध पर हर, पर निंदा नहीं कह सकते। पर हर देहुरी दीपक है। काम क्रोध पर हर पर निंदा सारियां ही छड्डनी है, पहले दो नहीं छड्डने और लास्ट वाली पकड़नी नहीं। सो पर हर जिहड़ा है वो काम क्रोध ते निंदा सारियां नूं लगदा। सो इट इज मोर दैन देहुरी दीपक। काम क्रोध पर हर पर निंदा, इत्थे विश्राम अर्ध विश्राम किते नहीं आएगा तुक च। जम्मे मरे ना आवे जाए, इकट्ठा ही पढ़ना पेगा। जम्मे मरे ना आवे जाए नहीं हो सकता, क्योंकि जेड़ा जम्मिया और मरिया वो ताई होया क्योंकि आवे जाए, आया और गया। जे आया गया नहीं तो जम्मे मरे नहीं होया। सो नन्ना इज देहुरी दीपक। जम्मे मरे ना आवे जाए, जम्मे मरे ना आवे जाए, दैट इज द राइट रीडिंग। गुर प्रसादी साच समाए, क्यों जम्मे मरे ना आवे जाए क्यों है? क्योंकि गुर प्रसादी सच समाए, वो गुरु की कृपा नाल सच विच समा गया। जिहड़ा सच विच समा गया है वह ना जम्मण है, ना मरण है, ना आवन है, ना जान है। हज काबे जाओ ना तीरथ पूजा, इकट्ठा ही पढ़ना पेगा। जे उन्होंने असीं कहिए हज काबे जाओ ना तीरथ पूजा, ਇਹਦਾ मतलब मुसलमान है। जिहड़ा कहता भी मैं हज काबे जावांगा तीरथ पूजा नहीं करांगा, पर अगे की क्या, एको सेवी अवर न दूजा। सो गल की बनती है कि हज काबे जाओ न तीरथ पूजा, एको सेवी अवर न दूजा। मेरे विचार नाल ये तुक है भैरो महला पंजवां दी, जिहड़ा पंचम पातशाह दा शब्द है, पर इहदा एंडिंग जिहड़ी हुंदी है वो लफज कबीर विच हुंदी है, नानक च नहीं हुंदी। ते इहदे वास्ते प्रोफेसर साहब सिंह जी ने लिखा है कि पंचम पातशाह ने यह शब्द कबीर साहब की परथाए उच्चारण किया है। जे कदे समा मिलिया तो इस पूरे शब्द की विचार कर लांगे, तो वी विल टॉक दैट अबाउट दैट। हुण अगे चल के इसे चीज इसे तुक की कंटिन्यूएशन है मेरे ख्याल है अगली लाइन, पूजा करो ना निवाज गुजारो। हुण जे असीं नन्ने नूं वख कर दिता, पूजा करो ना निवाज गुजारो, ਇਹਦਾ मतलब हिंदू है। जिहड़ा कहता भी मैं पूजा करनी है निवाज नहीं गुजारनी, but that's not what is being said. What is being said is एक निरंकार ले हृदय नमस्कार। मैं एक परमात्मा नूं अपने मन विच रखना। सो पूजा करो न निवाज गुजारो। This line will have to be read without a अर्ध विश्राम, ਇਹਦੇ ਚ पॉज नहीं आ सकता। जिस तरह ऊपर वाली लाइन पढ़ी सी, हज काबे जाओ न तीरथ पूजा, एको सेवी अवर न दूजा, उस तरह ही पूजा करो ना निवाज गुजारो, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। राम भगत गुर सेवा करना, बहुड़ जन्म न होए है मरना। राम भगत गुर सेवा करना, बाहुड़ जन्म न होए है मरना। बाहुड़ ते अर्ध विश्राम आएगा, क्योंकि बाहुड़ का मतलब की है फेर, दोबारा, मुड़ के,
जन्म ना होए है मरना, ना जन्म होएगा ते ना मरना होएगा। हुण जे तुहाडे कोल गुरबाणी दी ऐप हैगी है जेहड़ा सिंबल जी है, उस सिंबल च तुसीं देखोगे ते उत्थे स्पेसिस दित्तियां, कॉमे नहीं लाए, पर स्पेसिस आर इंडिकेटिव ऑफ द कॉमा, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस दे दित्ती है उस ऐप विच। हुण उत्थे जिहड़ी एक्स्ट्रा स्पेस दित्ती गई वो दित्ती गई 62 जन्म तो बाद। हुण उत्थे जिहड़ी लाइन अनजान बंदा पढ़ेगा वो कहेगा भी 62 जन्म ना होए है मरना, विच इज इनकरैक्ट। ते जे तुसीं ज्ञानी हरबंस सिंह दा स्टीक वेखोगे, उन्हां दा टीका वेखोगे, उन्होंने कॉमे लाए हैं, जिहड़ा मैं इत्थे नहीं दिखाया, मैं एक्स्ट्रा स्पेस दिखाई है, पर उन्होंने कॉमा सही जगह लाया है। 62 जन्म ना होए है मरना, ना ते जन्म होएगा ना मरण होएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देहुरी दीपक दी लाइन नूं किवें पढ़िया जाए और देहुरी दीपक दी लाइन विच अर्ध विश्राम कित्थे दिता जाए, मेरे विचार नाल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली लाइन देखते हैं, तह दुख ना भूख ना रोग व्यापै, चरण कमल लिव लाइए। तह जन्म न मरण न आवन जाना, निहचल सरणी पाई है। प्रेम बिछोह न मोह व्यापै, नानक हर एक ध्याई है। हुण प्रेम बिछोह ना मोह व्यापे दा नन्ना जिहड़ा हैगा ये दोनों पासे लगता है, क्योंकि प्रेम बिछोह ना मोह व्यापै, ना तो प्रेम होएगा ना विछोड़ा होएगा ना मोह होएगा, किसी चीज का भी अफसोस नहीं, कोई भी व्यापेगा नहीं, किसी चीज का दुख नहीं होएगा, तकलीफ नहीं होएगी। हुण उपर जे देखिए असीं, तह दुख ना भूख, इत्थे नन्ना दुख ना भूख नूं लग गया, ना रोग व्यापै, ये नन्ना ना रोग व्यापै नूं लग गया। तह जन्म ना मरण, ये नन्ना जन्म ना मरण नूं लग गया। ना आवन जाना, ये नन्ना आवन जान नूं लग गया। सो इत्थे दीज आर देहुरी दीपक वर्ड्स। ये शब्द देहुरी दीपक है जिहड़ा दोनों पासे लगता है। यही चीज तुहानूं दशम ग्रंथ विच भी देखण नूं मिलेगी। जह शत्रु मित्र नहीं जन्म जात, जह पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात, जह कर्म परम नहीं धर्म ध्यान, जह नेह गेह नहीं ब्योत नाम बान, जह जात पात नहीं शत्रु मित्र, जह नेह गेह नहीं चिन्ह चित्र, जह रंग रूप नहीं राग रेख, जह जन्म जात नहीं परम भेख। हुण देखो नहीं किथे किथे लगदा, जह शत्रु मित्र नहीं जन्म जात सारियां नूं लगदा, जह पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात नहीं सारियां नूं लगदा, आखन वख नहीं कर सकते इहनूं। सो दिस इज वेयर देहुरी दीपक शब्द प्लेज दिस पार्ट। जिहवा रस नहीं कहिया बुझै, हुण इत्थे नहीं दोनों नूं लगदा है, क्योंकि जिहवा च रस नहीं ना ही कहिया बुझदा, बिख का माता जग स्यों लूझै। जिहवा रस जे इत्थे अर्थ विश्राम दे दईए, नहीं कहिया बुझै, गल बनी नहीं ना। जेदी जिहवा च रस है वो कहिया बूझेगा ही। सो जिहवा रस नहीं कहिया बूझै, नहीं दोनों पासे लगता। So these are some of the examples I wanted to discuss with you about देहुरी दीपक। ते हुण चलते हैं असीं अगली स्लाइड ते। एक होर इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुहाडे नाल डिस्कस करनी है अज, वो है जे ईड़ी नूं सिहारी लां लगे और जे ईड़ी नूं सिहारी लगे, उन्हां दी वरतों विच गुरबाणी विच अंतर की है। ये अंतर जिहड़ा हैगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सटल। इहनूं समझण वास्ते थोड़ा समा लगेगा, पर एक बारी जदों समझ लग गई ना तो आनंद बड़ा आएगा। ये नुकता भाई रणधीर सिंह जी ने अपनी पुस्तक गुरबाणी दियां लगा मात्रा की विलक्षणता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ
और दो गुरसिखां दी बड़े तगड़े श्रद्धालु गुरसिख अमृत वेले इशनान करन आए और उन्हां दी आपस च विचार धारा शुरू हो गई। एक कहंदा भी तुक है निर्मल होए कर इशनाना, इहदा मतलब है कि सरोवर विच निर्मल होके जाना चाहिए, साबण नाल नहा धो के। वो कहता भी मैं ते इन्ना करदा कि मैं पहले नहा धो के कौलसर विच नहा के इशनान करके चुब्बी मार के फिर आके रामदास सरोवर च चुब्बी मारदा ताकि पानी दी निर्मलता रहे। दूजा कहता भी जे तू इस तरह की गल करदा है तो फिर सरोवर च जाने की लोड़ की है। मैं तो कहना कि निर्मल होए कर इशनाना, असी सरोवर च चुब्बी लावांगे तां साडा तन और मन निर्मल होएगा। कहता भी मैं तेरे नाल एग्री नहीं करता। उन्हां दोनों की वार्तालाप शुरू हो गई, विवाद शुरू हो गया। भाई साहब कहते असी नेड़े बैठे सी ते साडा भी मन कर आया भी ये गल्लां चंगियां कर रहे हैं, इन्हां नाल गलबात कीती जाए। ते असीं उन्हां नूं कहा भी चलो इस तरह करते हाँ, तुक देख लैने आ भी तुक की कहती है। जे तां ईड़ी नूं लगी होए लां तां ते मतलब होएगा कि भी इशनान करके निर्मल होए, ते जे ईड़ी नूं लगी होए सिहारी ओदा मतलब होएगा निर्मल होए कर कर इशनाना। तो कर उथे देहुरी दीपक लफज बन जाएगा कि निर्मल हो के ही इशनान करना चाहिए। वो दोनों गुरसिख एग्री कर गए, कहते चलो जी ठीक है, तुहाडी गल ठीक है, असीं तुक वेखदे हां की कहती है। जदों तुक खोली ते तुक विच भाई साहब कहते भी सानू मिलिया कि भी होए नूं लगी हुई है ला, निर्मल होए कर इशनाना। हुण मैं तुहानू यह चीज किस तरह एक्सप्लेन करदा, I call it the result and the action. If you notice, निर्मल होए is the result of action कर इशनाना। ररे नूं लगी सिहारी कर के करन नाल, इशनान करन नाल निर्मल हुंदा है शरीर तन ते मन। असीं अपना स्वरणजीत सिंह ने जो गल की सी उत्थे नहीं जा रहे, असीं खाली ग्रामर की गल कर रहे हैं। बट मैं स्वरणजीत सिंह जी की गल भी 1 मिनट च टैकल करांगा, सो बेयर विद मी प्लीज। इत्थे ईड़ी नूं लगी है ला, सो आई कॉल दैट एज द रिजल्ट। एक्शन है कर इशनाना, रिजल्ट की निकलना है निर्मल होए। भाई साहब कहते फिर असीं उन्होंने समझाया कि बई भरीए हथ पैर तन देह, पानी धोता उतरस खेह, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुण लईए ओ धोए, भरीए मत पापां कै संग, ओ धोपै नावै कै रंग। ते मन नूं जिहड़ा साफ करना है वो शब्द नाल ही करना है। तन की मैल जिहड़ी उतरनी है वो शरीरक इशनान नाल उतरनी है। साफ दोनों नूं रखना है, निर्मल मन भी रखना है ते निर्मल तन भी रखना है। ते रामदास सरोवर च जदों उसने इशनान करना है शरधा नाल, ते तन ते मन दोनों ही धोते जाने हैं। सो निर्मल होए कर इशनाना। सो इन दिस केस आई से दैट कर, ये जिहड़ा लफज कर है ये है वर्ब एंड इट इज अ ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब। ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब वो हुंदा है जिहदे नाल किसी चीज ते असर होए। हुण इशनान करन नाल असर है बंदे दे उत्ते कि शरीर निर्मल हो जाता है। इफ वी जस्ट लुक एट द फिजिकल आस्पेक्ट ऑफ इट, जस्ट द फिजिकल आस्पेक्ट, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लईए ओ धोए। When we bathe, we clean the body. निर्मल होए कर इशनाना निर्मल होए। So this is the transitive action word which results in the result of tranquility.
स्पिरिचुअल ट्रैंक्विलिटी इज अचीव्ड थ्रू मन की निर्मलता और तन की निर्मलता। सो इत्थे जिहड़ा रिजल्ट है इट इज पोस्ट एक्टिविटी एक्शन। एक्टिविटी दे होने तो बाद यह नतीजा निकलेगा। हुण असीं देखते हैं कि जे ईड़ी नूं सिहारी लगी है तां की होया। उत्थे एग्जाम्पल है हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। हुण हर गुण गाए की है? इट्स एन एक्शन। मेरा मन शीतलाया की है? रिजल्ट। सो इफ द एक्शन कम्स बिफोर द रिजल्ट उत्थे ईड़ी नूं सिहारी लगेगी। ये प्रिंसीपल तुसी गुरबाणी दा लक बन लो, ये बदलेगा नहीं। और मैं तुहानू मल्टीपल एग्जाम्पल्स अगे चल के विखाना, बट लेट अस गो बैक वंस अगेन। ये याद रखना माफ करियो काफ़ी मुश्किल है, मैनू खुद नू कन्फ्यूजन होता है भावें मैं तुहानू इत्थे ग्राफिकल डिस्प्ले दे रहा, बट आई माई सैल्फ गेट कन्फ्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम के तुक कह की रही है। जे ईड़ी नूं सिहारी है सेंटेंस विच, it is mostly applicable for ED, but in some cases it is applied to other alphabets also. We will discuss that. हर गुण गाए की होया? ये एक्शन करन नाल की होया? रिजल्ट आ गया। की रिजल्ट आया? मेरा मन शीतलाया। So in this case it can be clearly noticed that हर गुण गाए is a precursor to attaining the result of soothing of the mind. So this is also a subordinate clause to this result. इस तुक दे दो हिस्से हैं, ये subordinate clause है, ये principal clause है। हर गुण गाए is subordinate to मेरा मन शीतलाया। So this is how you will have to remember के जे एक्शन ईडी नाल आया है तो इट्स एन एक्शन। जे पहले शब्द ईडी आई है सिहारी नाल, सॉरी आई अपोलोजाइज, जे ईडी सिहारी नाल आई है इट डिनोट्स एन एक्शन एंड द रिजल्ट विल कम आफ्टर दैट। जे ईडी ला नाल आई है इट विल डिनोट द रिजल्ट एंड एक्शन विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ द लाइन। Let's go look at some examples to reinforce this. धंधा तावत रह गए, ईड़ी नूं ला लगी, धंधा तावत रह गए की है? रिजल्ट है। कदों होया? लागा साच प्यार। लागा साच प्यार हैज टू हैपन फर्स्ट फॉर दिस टू हैपन। ये एक्शन पहले होएगा ता रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट इज डिनोटेड बाय ला। शब्द मरे ता उधर है, पाए मोक्ष द्वार। अगेन ला आ गई, रिजल्ट आया पाए मोक्ष द्वार। आप मंझाए ता सब कुछ पाए। हुण तुसीं कहना मनजीत सिंह तू गल कर रहे हैं भी रिजल्ट ईड़ी नूं ला नाल आंदा है ते इत्थे वंझाए नूं ला लगी हुई है ईड़ी नूं, ये की हो गया? वंझाए लफज है, वंझाए लफज बनता ही ईड़ी नूं ला नाल है, ईड़ी नूं सिहारी नाल ये लफज नहीं बनता। इस वास्ते ये लफज इस तरह आया, पर इहदा साडा जिहड़ा असीं प्रिंसीपल डिस्कस कर रहे हैं उहदे नाल कनैक्शन नहीं है। इस इंडिपेंडेंट तां सब कुछ पाए, सब कुछ पाए इज द रिजल्ट। ईड़ी नूं लगे ला। पाओ भोजन सतगुर तुठै पाए, रिजल्ट ईड़ी नूं ला। सतगुर सेवे तां फल पाए, सेम प्रिंसिपल। सतगुर सेवे भरम चुकाए, सेम प्रिंसिपल। सतगुर का दर्शन सफल है, जेहा को इच्छे तेहा फल पाए, ईड़ी नूं ला, रिजल्ट है। सो आई हैव रिटन the term result everywhere ताकि जे तुसी दोबारा स्लाइड देखोगे ते तुहानू ease of understanding मिल जाएगी। एक मिनट जरा थोड़ा जिहा मैनू इत्थे दोनों लाइन सतगुर सेवे
ਤੇ ਇਹ ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਏ, सतगुर इस नो डिफरेंस किते भी ला सकते हो। मैं वख इस वास्ते कीती है कि मैं तुहानू रिजल्ट अलग दसना सी, बट यस द लाइन कैन बी ब्रोकन ईदर वे। इस तरह काफी होर दूसरियां भी लाइन है जिन्होंने वख-वख कर सकते हैं, बट आई हैव पुट माई एम्फेसिस ओनली ऑन ईडी, नॉट ऑन अदर थिंग्स। सो यू आर राइट। गुर का शब्द अमृत है, सब तृष्णा भुख गवाए, हर रस पी संतोख हुआ, सच वसिया मन आए, सच ध्याए अमरा पद पाया, अनहद शब्द वजाए। हुण इत्थे तुसीं देखो की होया, ध्याए ईड़ी नूं लग गई सिहारी। जदों ईड़ी नूं लगी सिहारी ते की सी? एक्शन सी। यू रिमेंबर? It was an action, you see. Let us go to, if you remember this, Idunu Siari, it was an action. So, ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਅੰਚਲ ਲਾਏ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਸਿਸ਼ਟ ਤਰਾਈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ। ਤਰਤ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਕੋਈ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ। पर पाए कोई इस दा रिजल्ट ईडी नूं की लग गई? ला लग गई। ज्योति जोत मिलाए, काया गढ़ सोहिया राम, मिलाए एक्शन। जिन सतगुर सेवियो से आए गए पछताएं। हुण इत्थे देखो तुसीं ख्याल रखियो, जिन्हें सतगुर ना सेवियो, अपोलोजाइज माई मिस्टेक, माफ करना, क्षमा करियो जे। जिन्हें सतगुर ना सेवियो से आए गए पछताएं। एक्शन ऑफ आए हैज टू हैपन फर्स्ट बिफोर गए। बड़ी गहराई नाल महाराज ने गुरबाणी लिखी है। आई टेल यू इट इज सो अमेजिंग कि जदों यह चीज समझ लगती है ना ते आनंद ही इतना आंदा है कि इट्स अनबिलीवेबल। कितनी गहराई है महाराज की लिखत विच। आए गए ला नाल भी लिख सकते सी ना, पर नहीं, हर जगह ते हर लफज विच इतनी गहराई महाराज ने प्रगट की है कि असी एक एक लफज नूं जे समझिए ते आनंद ही आनंद है। आई टेल यू, जिन्हें सतगुर न सेवियो से आए गए पछता है, जो आवे से जाहे फुन, आए गए पछता है। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, एक्शन है ना। कर इज अ वर्ब, सिमर इज अ वर्ब, ररे नूं सिहारी लगी है। सिमर के, सिमर इज द वर्ब, सिमरन सिमरना इज अ वर्ब, एक्शन है। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, की होएगा? मन तन भय अरोगा। हुण देखो ईडी नूं लग गई ला। दिस इज द ब्यूटी, यू सी। तुसीं गलती खा ही नहीं सकते जे तुहानूं यह समझ लग गया प्रिंसीपल ना, तुसीं आनंद माणोगे बाणी पढ़ोगे तो। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरै सो मर जाए। हुण तुसीं कहोगे इत्थे आए नूं ला क्यों लगी? ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तुद चित आए, दो इट इज एन एक्शन, पर मेन एक्शन किथे दसिया? जिस विसरै हहे नूं लगे सिहारी सो मर जाए। रिजल्ट की हो गया? मर जाए। ईड़ी नूं लग गई ला। हुण आए गए जिहड़ा शब्द मैं तुहानूं दसिया सी, ईड़ी नाल आए हमेशा ईड़ी नूं
ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਆਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਵਿਦ ਸਿਹਾਰੀ ਔਰ ਗਏ ਵਿਦ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਵਿਦ ਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਏ ਈੜੀ ਲਾ ਔਰ ਗਏ ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਏ ਗਏ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਆਏ ਗਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਈੜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਤੁਕ 'ਚ ਵਰਤੇ हैं। That's the beauty, you see। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਆਏ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਮਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਬੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਇਡੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕਿਤਨੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਲਾਨ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਆਏ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਸਿਹਾਰੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਲਾ। ਆਪ ਕਰਤਾ करे कराए, सचड़ा साहेब शब्द पछाणिए, आपे लय मिलाए। मिलाए लय मिलाए एक्चुअली इकट्ठा ही हो जाता है, किसी चीज नूं लैके मिलाना। सो इत्थे दोनों नूं ला लगी है, पर रिजल्ट है मिलाए। हुण अगली तुक ते तुसीं कहना भी ये की हो गया, सच्चा शब्द मन मोहिया प्रभ आपे लय मिलाए। हुण इत्थे मिलाए नूं सी ला ईड़ी नूं, इत्थे मिलाए नूं लग गई ईड़ी नूं सिहारी। पर मैं तुहानूं फिर भी कह रहा रिजल्ट है, पर मैं तुहानूं हुणे दस्सिया सी कि एक्शन ईड़ी नाल जदों आंदा है उदों एक्शन हुंदा है, ते इत्थे मैं कह रहा भी ईड़ी दा सिहारी लग गई ते रिजल्ट हो गया। क्यों? लेट अस लुक एट दिस लाइन वेरी केयरफुली। You see, result is actually लय। मिलाए जिहड़ा हुंदा है किसी चीज नूं मिला लेना। इसे मैं इस करके मैं दोनों ग्रीन च रखियां। जदों तुसी असीं कहने आ ना इहनूं मिला लै, इहनूं चुक लै। सो इत्थे जिहड़ा लय मिलाए महाराज ने लिखिया है वो पोएटिक यूनिफॉर्मिटी विद द लास्ट लाइन एंड द नेक्स्ट लाइन, विद द प्रीवियस लाइन एंड द नेक्स्ट लाइन। पर एक्चुअली मीनिंग की है मिलाए लए। मिलाए लए, मिलाए इज द एक्शन, लए इज द रिजल्ट। सो इफ यू लुक एट दिस लाइन वेरी केयरफुली प्लीज, इहनूं तुसीं आपे गहराई नाल सोचियो जे। जदों तुसीं गहराई नाल सोचोगे ते तुसीं मेरे नाल सहमत हो जाओगे। इस टाइम शायद तुसीं मेरे नाल सहमति ना बनाओ, विच इज फाइन, बट वट आई एम टेलिंग यू इज जिस तरह असीं कहने आ इहनूं ओहदे नाल मिला लै, इहनूं मिला के चुक लै, इहनूं इस तरह कर लै। सो लय इज द रिजल्ट। मिलाए लए, सच्चा शब्द मन मोहिया प्रभ आपे मिलाए लए। पर पोएटिक फ्लो डज नॉट अलाउ मिलाए टू गो हियर। सो फॉर पोएटिक फ्लो महाराज कहंदे लय मिलाए। सो इस वास्ते ईड़ी नूं आई सिहारी, लय नूं आई ला। एस द ब्यूटी। शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम न लहै बहुत वेगार दुख पाए। इत्थे देखो शरीरों पालन को बाहर जाए, जाए एक्टिविटी कंप्लीट हो गई ना। नाम न लहै बहुत वेगार, बहुत मेहनत करता पर कुछ फायदा नहीं होता, दुख पाए, रिजल्ट है। शब्द मरै ता एक लिव लाए, लाए इज द रिजल्ट। सो इस वास्ते ईड़ी नूं लगी ला।
मेरा टाइम हो गया, बट आई विल बी टेकिंग फ्यू मोर मिनट्स विद यू। बाहर धोए अंतर मन मैला, दे ठौर अपने खोए। अगली तू की है, गुरबिन अलख न लखिया भाई, जग बूढ़े पत खोए। हुण देखो इन्हां च फर्क की है। फर्क यह है, बाहर धोए अंतर मन मैला, बाहरों तो धोंदा है, दो ठोएर अपने खोए। रिजल्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, उन्हें दोनों ठौर अपने गवा ले। गुरबिन अलख न लखिए भाई, जग बूढ़ा, रिजल्ट की है, सारी दुनिया डूब रही है। किस तरह? पत खोए। पत खोए इज एन एक्शन। रिजल्ट की है, गहराई नाल वेखियो, जग बूढ़ा, डूब रहा जग, द वर्ल्ड इज सिंकिंग। किस तरह? पत नूं खो के। दिस इज पार्ट ऑफ द एक्शन। रिजल्ट इत्थे है, इस वास्ते ईडी नूं लगी सियारी। प्लीज थिंक ऑन दीज लाइन्स एट योर लेजर, ताकि तुसी इहदा आनंद मान सको। सो साधु बैरागी सोई, हृदय नाम वसाए। कंप्लीट हो गया ना एक्शन। गुर कै चरण हृदय वसाए, एक्शन है। ईड़ी नूं सिहारी लगी। दुख दुख दुश्मन तेरी हतै बलाए। बलाए नूं क्योंकि ये लफज है, बलाए बला, और पोएटिक फ्लो है, इस वास्ते ईड़ी नूं इत्थे सिहारी लगी है। एक्शन इत्थे है, वसाए। हर हर आनंद भया दिन राती, नानक हर मीठ लगाए। कंप्लीट हो गया ना। नानक हर मीठ लगाए। जदों हरि दा नाम मिठा लग्या तां हर हर आनंद भया दिन राती, दिन रात आनंद मान रहा सेवक। भस्म लगाए, एक्शन। तीरथ बहु भ्रमते, सूखम देह बंध है बहुत जटुआ। बहुत जतना नाल सूखम देह नूं बन्हदे आ बेकार विच। भस्म ला के तीरथ ते भेख करके घूम रहे हैं। तीरथ लगाए, भस्म लगाए, एक्शन है। सो ईड़ी नूं है सिहारी। हुण यह लगाए जिहड़ा हैगा, इहनूं मैं दो एस्ट्रिक लाए हैं इस वास्ते कि मैं तुहानूं दस्सां कि यह लफज गुरबाणी च खाली इक्को वारी आया। दैट्स इट। ये लफज दोबारा नहीं आया, सिंगल टाइम यूज वर्ड है गुरबाणी का। और माई प्रेजेंटेशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। एक होर देख लेने सिहारी की वरतों। सिहारी की वरतों च की हुंदा है, मैं जदों सिहारी पढ़दा ते मैं सिहारी नूं थोड़ा जिहा जबान नूं रोल करके पढ़दा। क्यों? क्योंकि जिहड़ा बंदा सामने बैठा पाठ सुन रहा है, उन्होंने थोड़ी जी समझ लग जाए कि की है। आई रीड इट आउट टू यू। माया मोह शब्द जलाए, जलाया। माया मोह शब्द जलाया। जे मैं इहनूं पढ़ा, माया मोह शब्द जलाया, ਇਹਦਾ मतलब माया दे मोह ने शब्द नूं जलाता। दैट्स नॉट द इंटेंट। मीनिंग है कि माया का मोह शब्द द्वारा जलाया गया। माया मोह शब्द जलाए, जलाया। यह मन शब्द ना भेदियो, इस मन नूं शब्द द्वारा ना भेदिया, क्यों होवे घरवास। हुण इत्थे क्यों दा साडी पहली जिहड़ी क्लास सी, जिहड़ी पहली विचार असीं कीती सी, अगेन आई यूज दैट रॉन्ग वर्ड क्लास, माफ करना। मैं चरणजीत सिंह वीर जी ने कहना क्लास ना कहो। आई माइसेल्फ यूज दैट वर्ड। पहली जिहड़ी विचार कीती सी, उहदे च असीं क्यों और क्यों दा फर्क डिस्कस कीता सी। क्यों दा अर्थ है किम, किस तरह। क्यों दा अर्थ है वाई। जे मैं ए शब्द नूं क्यों होवे घर वास पढ़दा, तां इहदा मतलब मेरा घर विच वास क्यों होना है। दैट्स नॉट द इंटेंट। किव होवे घर वास, मेरा घर विच वास किहड़े तरीके नाल होए। यह मन शब्द ना भेदियो, जे शब्द द्वारा इस मन नूं नहीं भेदिया ते घर विच वास किवें होएगा, नहीं हो सकता। सो जे मैं पढ़ा, यह मन शब्द ना भेदियो, द टोन चेंजेस एंड द मीनिंग चेंजेस, द एम्फेसिस चेंजेस। शब्द मरै सोई जन सिजै, बिन शब्द है मुक्त ना होई।
नानक शब्द मरै मन मानिए साचे साची सोए। हुण जे तुसीं सुखमनी साहब दा पाठ करदे हो, प्रभ के सिमरन है, मैं उन्होंने थोड़ा जिहा हल्का जिहा मन विच मैं पढ़दा कि इस सिमरन नूं नन्ने नूं सिहारी लगी हुई है। प्रभ के सिमरन नहीं पढ़ता मैं कहना प्रभ के सिमरन है गर्भ न बसै, प्रभ के सिमरन है दुख जम नसै, प्रभ के सिमरन है काल पर हरै, प्रभ के सिमरन है दुश्मन टरै। प्रभु दे सिमरन द्वारा सारियां नन्नियां नूं सिहारी लगी है। ते जे असीं नन्ने नूं सिहारी मन विच समझांगे नहीं ते मेरे विचार नाल सानू तुक दी समझ नहीं लगेगी और सामने सुनन वाले नूं भी वही उसी तरह तुक दी समझ नहीं लगेगी। हुण तुसीं इत्थे देखो लास्ट एग्जांपल विच गुण संग्रह। एक मिनट ऊपर क्यों वाला दोबारा समझा दियो। हाँ जी, यह मन शब्द ना भेदियो क्यों होवे करवास। क्यों क्यों नहीं, जे मैं इनू क्यों कहना, क्यों दा मीनिंग है वाई, वाई तो है ही नहीं ना। क्यों दा मीनिंग है किव, किस तरह। सो इत्थे बिंदी नहीं पढ़ी जाएगी, बिंदी पढ़ांगे तो मीनिंग बदल जाएगा। क्यों होवे घर वास, किस तरह घर विच वास होए। जिस तरह तुक आंदी है कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। हुण जे असी तकरीबन पाठी खेमा करियो, माफ करना मैं कला ही ठीक नहीं हैगा, बहुत ठीक बंदे हैं, पर मैनू जिहड़ी गलती कर करके समझ आई है वो मैं तुहाडे नाल विचार कर रहा। हुण जे इस तुक नूं असी पढ़दे हो कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। हुण जिहड़ा बंदा बगले की तरह ध्यान ला के बैठा वो कित्थे जा सकता है, कहाँ ते बनिया ही नहीं ना। फिर महाराज कहते कहा भयो की होया, कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै दोनों अखा बंद करके तू बगले की तरह समाधि ला के बैठे, फायदा की होया। कहा भयो की हो गया, कुछ नहीं होया। कहा भयो ते उत्थे जे असी कहाँ पढ़ते हाँ ते तुक दा मीनिंग बदल जाता है। सो उस तरह ही यह लफज क्यों और क्यों है। Am I clear now चरणजीत वीर जी? सर एब्सोल्युटली। आइए असी गुण संग्रह और गुण शब्द जलाए। गुण संग्रह गुणा का संग्रह करना और गुणा नूं शब्द द्वारा जलाना। ता प्रभ पाए गुर शब्द वखाना, ददे नूं लग गई औंकड़, नाउन बन गया। इत्थे ददे नूं लगी सी सिहारी, एडवर्ब सी। सो प्लीज ख्याल रखो, विचार करो, अपना आनंद माणिए बाणी का शुद्ध पढ़ के। लास्ट स्लाइड है, आई विल फिनिश। ये मैं रिफ्रैशिंग स्लाइड लगाई है क्योंकि ये डिस्कशन भी साडी पहली जिहड़ी विचार कीती सी असी गुरबाणी व्याकरण दी, उहदे विच ये डिस्कशन हुई सी एक एक और एक दा अंतर की है। सो मैं रिफ्रैशिंग स्लाइड तुहाडे नाल डिस्कस कर रहा ताकि थोड़ी रीएनफोर्समेंट आ जाए, भुल जाने असीं सारे चीज़ां फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक राजे तख्त बहै नित सुखीए, एक ना भिख मंगाया जियो, एक और एक ना बहुवचन है। जदों कक्के नूं सिहारी लगेगी, एक दे कक्के नूं सिहारी लगेगी, बहुवचन का लखायक होएगा। और वो सानू इत्थों क्लीयरली पता लग जाता है क्योंकि महाराज कहते एक राजे, बहुवचन है ना, राजा नहीं है, राजे है। तख्त बहै बहुवचन है, बहै नित सुखिए, सुखिए अगेन बहुवचन है। इकना इस बहुवचन, भिख मंगाया जियो। सो इत्थे जितने भी रेफरेंसिस आए हैं इस लाइन में वो बहुवचन लाइन की रेफरेंसिस आए हैं, इस वास्ते कक्के नूं सिहारी है। एक इज है बहुवचन। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान, एक इंडिविजुअल पुलिंग की गल हो रही है। अगे देख लेने, फिर वील टॉक अबाउट इट इन अ मिनट।
लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीश, एक नाम पुलिंग रेफरेंस है। दरगह दाना पीना एक आपे, एक आपे पुलिंग रेफरेंस है। मैस्कुलिन पुलिंग, सिंगुलर, सॉरी आई अपोलोजाइज, सिंगुलर पर मैस्कुलिन, पुलिंग इज मैस्कुलिन, स्त्रीलिंग इज फेमिनिन। यस आई वाज राइट, मेरी थोड़ा पंजाबी रिफ्रेश करनी पड़ी है। दरगह दाना बीना एक आपे निर्मल गुर की बाणी, मैस्कुलिन रेफरेंस है, पुलिंग रेफरेंस है, कक्के नू औंकड़ है। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, इत्थे की है, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ कि जिस तरह का नाउन होएगा उस तरह का एडजैक्टिव होएगा। जे नाउन नू औंकड़ लगी है तो एडजैक्टिव औंकड़ नाल आएगा। इस वास्ते इत्थे एक दे कक्के नू भी औंकड़ है, गुण दे णाणे नू औंकड़ है, क्योंकि किसी एक गुण की गल हो रही है और गुण है पुलिंग, गुण इज मैस्कुलिन, गुण स्त्रीलिंग नहीं है। हुण इत्थे जिहड़े इन्नियां सारियां एग्जाम्पलां सी जिथे कक्के नू औंकड़ लगी सी, उत्थे मैं तुहानूं इत्थे क्लीयर कीता कि एक और एक, एक वचन पुलिंग। एक दोबारा सर मस्कुलिन और फेमिनिन दा जरा इंडिकेटर किस तरह है वो मैंने समझ नहीं आया, दोबारा दस्यो वीर जी। हाँ जी हाँ जी, मस्कुलर और फेमिनिन दा इंडिकेटर किस तरह है वो समझ नहीं आया बानी। हाँ जी, मैं कह रहा सी कि मैस्कुलिन इन इंग्लिश इज पुलिंग इन पंजाबी, राइट। जदों पुलिंग रेफरेंस होएगी, पुलिंग रेफरेंस ते कक्के नू औंकड़ लगेगी एक दे, इट इज लखायक ऑफ अ सिंगुलर मैस्कुलिन एड्रेस, एक वचन पुलिंग। इत्थे देखो मैं लिखा एक वचन पुलिंग, सिंगुलर मैस्कुलिन एड्रेस, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दी बाण, लख लख गेड़ा आखिया एक नाम, नाम दे मम्मे नू औंकड़ है, एक दे कक्के नू औंकड़ है, जिहो जिहा नाउन तिहो जे विशेषण। एक आपे निर्मल पुलिंग एड्रेस है, मैस्कुलिन एड्रेस है, एक दे कक्के नू औंकड़। सिंगुलर एक आपे निर्मल, सिंगुलर पुलिंग एड्रेस, सिंगुलर मैस्कुलिन एड्रेस, एक वचन पुलिंग। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, गुण दे णाणे नू औंकड़, नाउन एक विशेषण कक्के नू औंकड़, जिस तरह का नाउन उस तरह की विशेषण। एक गुण कदे भी कक्का बगैर औंकड़ दे नहीं आएगा जे गुण नू औंकड़ लगी है। जे णाणे नू औंकड़ नहीं ते बहुवचन है, उत्थे एक नहीं आएगा। जे एक आएगा भी किते कक्के नू औंकड़ नहीं होएगी, क्योंकि गुण दे णाणे नू औंकड़ नहीं लगी, बहुवचन गल हो रही है। सब सर भर थल हरियावले एक बूंद न पवई के, हुण इत्थे कक्के दी औंकड़ उतर गई क्योंकि स्त्रीलिंग एड्रेस है। बूंद एक बूंद सिंगुलर, एक वचन स्त्रीलिंग की गल हो रही है, एक बूंद की गल हो रही है, पर बूंद स्त्रीलिंग है। बूंद नू स्त्रीलिंग एड्रेस करके गुरबाणी च लिखा गया है, इस वास्ते कक्के दी औंकड़ उतर गई। एक घड़ी ना मिलते, घड़ी स्त्रीलिंग है, एक दी औंकड़ उतर गई। एक घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता। सो एक घड़ी स्त्रीलिंग, एक एक वचन स्त्रीलिंग का लखायक दी विशेषण है। सो जिथे तुहानू एक सिहारी नाल मिलेगा पुलिंग होएगा, जिथे तुहानू एक औंकड़ नाल मिलेगा उत्थे सारी बहुवचन होएगा, जिथे एक सिहारी नाल मिलेगा बहुवचन होएगा, जिथे एक औंकड़ नाल मिलेगा एक वचन पुलिंग सिंगुलर मैस्कुलिन, जिथे एक मुक्ता मिलेगा उत्थे स्त्रीलिंग एक वचन।
क्योंकि बहुवचन असीं इत्थे वेखिआ तुक्के नूं सिहारी लग जाएगी बहुवचन च। सो दिस इज वट आई वांटेड टू रिफ्रेश विद यू। माफ करियो मैं समा तुहाडा फिर ज़्यादा ले लिया है।